अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 4th के EVSC का चैप्टर 8 बिजी मंथ पढ़ेंगे। बच्चों, ये जो लेसन है ये एक लेटर यानी चिट्ठी की सूरत में है, जो किसने लिखी है? सलीम अली ने लिखी है, जो कि बाल मंदिर भावनगर में लिखी गई है 13 अप्रैल 1936 को। इस चिट्ठी में वो कहता है, डियर चिल्ड्रन, इट इज़ 3 o'clock in the afternoon. There are no clouds in the sky. The sun is burning hot. The sparrows, doves, and sunbirds have started working in pairs to make their nests. Some of the birds have already made their nests. In some of the nests, the eggs have been hatched. The parent birds are busy feeding the chicks with different kinds of insects and other things. In our courtyard also there is a baby dove. There is another egg in the nest, but it has not hatched yet. बच्चों, दोपहर के 3 बजे होते हैं। आसमान पे कोई बादल नहीं है और तेज़ धूप हो रही है। परिंदे जैसे स्पैरो, डव, सनबर्ड्स वो अब ग्रुप्स में बढ़ के अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना अपना घोंसला बना रहे हैं। और कुछ परिंदों ने पहले ही अपने घोंसले बनाए हैं। कुछ घोंसलों में तो अंडों से बच्चे भी निकल चुके हैं। जो चूजे होते हैं छोटे, इन्हें हम चीक्स कहते हैं। कुछ पेरेंट बर्ड्स अपने बच्चों को खाना खिला रहे हैं और कुछ अपने बच्चों को कीड़े खिला रहे हैं और कुछ दाना खिला रहे हैं। हमारे भी कोर्टयार्ड यानी आंगन में एक बेबी डव है और एक दूसरा अंडा है घोंसले में, जिससे अभी कोई चूजा नहीं निकला है। On the way to Gopal Bhai's house, there are many stones along the roadside. In the space between these stones, an Indian robin has laid its eggs. Karan showed it to me. I looked through the binoculars. I saw that the nest was made of grass. On top there were soft twigs, roots, wool, hair, and cotton wool. This is how the robin makes its nest. What a soft and cozy home for its chicks. The robin is not like the crow. A crow's nest is made of all kinds of things, even pieces of wire and wood. I saw a baby bird in the robin's nest. It was sitting with its beak wide open. The mouth was red from inside. In a little while the robin flew to the nest and put something in the chick's open beak, maybe a few small insects, but then it was evening. The robin settled down with its chicks. जब हम गोपाल के घर जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारे पत्थर हैं, जिनके बीच में इंडियन रॉबिन जो है ये एक परिंदा है, उसके अंडे हैं। यहाँ पे दूसरा लड़का है करण, जिसने ये चिट्ठी लिखने वाले को दिखाया है। तो जिसने ये चिट्ठी लिखी है वो कहता है कि मैंने अपनी दूरबीन से देखा कि ये नेस्ट जो है ये घास से बना है। नेस्ट के ऊपर छोटी बारीक टहनियाँ, रूट्स और वूल था और हेयर बाल थे और कॉटन वूल था। इसी तरह ये बर्ड अपना घोंसला बनाता है। कितना सॉफ्ट और आरामदेह घर बनाया जाता है इसके चूजों के लिए। रॉबिन जो है उसका घोंसला कौवे के घोंसले से जैसा नहीं होता है, क्योंकि कौवा अपना घोंसला तारों और लकड़ियों से बना देता है। अब ये कितना कहता है कि मैंने एक चूजा देखा रॉबिन के नेस्ट में। उसने अपनी चोंच खुली रखी थी और उसका मुंह जो है वो लाल था। अचानक ही रॉबिन आ गया, उसके मुंह में कुछ कीड़ा डाला। उसके बाद शाम हो गई और रॉबिन अपनी चूजों के साथ बैठ गया। There is a small tree nearby. It has a nest hanging from its branch. Birds are wonderfully different. The crows build its nest high up on the tree. The dove makes its nest among the thorns of a cactus plant or a mehndi hedge. The sparrows can be found in and around our own house. It makes its nest anywhere, on top of a cupboard, behind a mirror, on a roof. Pigeons also make their nest like this. Often they make nests in old or deserted buildings. The barbet or coppersmith bird can be heard in the summer with its tuck 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 call. It makes its nest in a hole in a tree trunk, and the tailor bird uses its sharp beak to stitch together 2 leaves on a bush. It lays its eggs in the fold of the leaf that it has made. This is its nest.
सामने ही एक छोटा सा दरख्त है जिस पे एक घोंसला लटका हुआ है। ये परिंदे बहुत ही ज़्यादा हैरत अंगेज होते हैं। बच्चों, जो कौवा है वो अपना घोंसला ऊंचे दरख्त पे बनाता है। डव अपना घोंसला कैक्टस प्लांट पे बनाती है या फिर मेहंदी प्लांट पे बनाती है। स्पैरो कहीं भी अपना नेस्ट बनाती है, यहाँ तक कि हमारे घर में भी बनाती है। इसी तरह कबूतर भी अपने घर बनाते हैं पुरानी वीरान जगहों पे। इसी तरह कॉपर स्मिथ जो है ये एक बर्ड है जो टक टक आवाज़ करता है। बाहर में वो दरख्त के ट्रंक पे एक सुराख बनाता है, फिर उसी को अपना घोंसला बना देता है। टेलर बर्ड अपनी नोकीली चोंच से 2 पत्तों की सिलाई करके अपना घोंसला बना देता है और उसी पे अंडे भी देता है। The sunbird makes a nest that hangs from the branch of a small tree or a bush. The same evening we saw a sunbird's nest. Can you guess what its nest is made of? The nest has hair, grass, thin twigs, dry leaves, cotton wool, bits of trees, bark, pieces of clothes, rugs, and even spiders' webs. When I looked through the binoculars, I could see a chick in the nest. It was sitting near the small opening in the nest. It was waiting for its mother to bring some food. What else can it do? Just eat and sleep. All the birds are so busy these days. Making a nest and laying the eggs in is only the first step. It is a difficult task to raise the young ones in the nest which had been made with so much effort. Birds have many enemies, humans and other animals, crows and squirrels, cats and rats. All of them wait for a chance to steal their eggs. Many times they even break their nest. To keep oneself safe from danger, to find food, make a nest, hatch the eggs and raise the chicks safely. All these are tasks from every bird. And see how the birds settle, sing with joy and separate their wings and fly freely. सनबर्ड जो है वो अपना घोंसला छोटे ट्रीज या झाड़ियों पे लटकाता है। इसी तरह शाम को हमने सनबर्ड का घोंसला देखा। उसने अपना घोंसला घास, सूखे पत्तों से, टहनियों से बनाया था। जब मैंने अपने दूरबीन से देखा तो मैंने 2 चूजे देखे जो अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे थे ताकि वो इन्हें खाना दे। हर एक बर्ड आजकल बिजी है। घोंसला बनाना और अंडे देना उनका पहला काम है। ये बहुत मुश्किल काम है कि अपने छोटे बच्चों को बड़ा करना, घोंसले में जिसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। परिंदों के बहुत सारे दुश्मन हैं, जैसे इंसान हैं, कौवे हैं, बिल्लियां हैं, चूहे हैं। हर एक मौके की तलाश में होते हैं कि इनके अंडों को नुकसान पहुंचाया जाए। अपने आप को महफूज रखना, खाना ढूंढना, घोंसला बनाना, अंडे देना, अपने बच्चों को बड़ा करना, ये सब काम बर्ड्स करते हैं। और इतना कुछ करने के बाद भी वो गाना गाते हैं, परों को फैला के उड़ते रहते हैं। अब इस लेटर की एंडिंग होती है और लेटर लिखने वाला कौन होता है बच्चों? कौन है लेटर लिखने वाला? सलीम अली नामी एक शख्स। तो लास्ट पे वो कहता है आज के लिए इतना ही, मेरे तरफ से आप सबों को सलाम, बाकी वसलाम।